is Radhika Gaur with the session number 6 of your chapter Work and Energy, and in this session we are going to talk about power. Power क्या होता है? Power से related कुछ numericals, power के concepts हम इस session में discuss करने जा रहे हैं. So let's start our session number 6 with the name power. Actually, what power actually is? The rate of doing work or the rate at which energy is transferred or used or transformed is called power. क्या होता है? किसी भी वर्क को करने का जो रेट है, और वी कैन से कोई भी रेट जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो, यूज हो या ट्रांसफॉर्म हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम पावर कहते हैं. क्लियर? That the rate of doing a work or the rate at which energy is transformed or used or transferred is called power. When work done W is done in time T, then the power is equals to work upon time, that is P is equals to W upon T. This is the formula of power. समझ में आया? That the rate of doing work or the rate at which energy is transferred or used or transformed is called power. That is, power is equals to work per unit time. That is, power is equals to W upon T. अब बताते हैं SI यूनिट क्या है पावर की. The SI unit of power is watt in honor of James Watt having the symbol W. जो SI यूनिट है पावर की वो वॉट है, जो जेम्स वॉट के ऑनर में रखी गई, और उसका सिंबल क्या है? कैपिटल W. We express larger rate of energy transfer in kilowatt. किलोवाट में हम larger rate of energy transfer को किलोवाट में एक्सप्रेस करते हैं, बट SI यूनिट वॉट ही है. 1 watt is equals to होता है 1 joule per second. क्लियर? 1 kilowatt is equals to 1000 watt होता है, that is 1000 joule per second. And 1 megawatt is equals to 10 की पावर 6 watt होता है, and 1 horse power is equals to 746 watt होता है. हॉर्स पावर काफी इंपोर्टेंट यूनिट है पावर की, हमेशा याद रखना दैट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट. क्लियर? द थिंग इज दैट व्हाट इज एवरेज पावर? एवरेज पावर क्या होती है? एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन बाय द टोटल टाइम टेकन. आई मीन कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कितना टोटल वर्क किया जा रहा है, कितने टाइम में, उसे क्या बोलते हैं हम? एवरेज पावर. दैट इज टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, that will be is equals to the average power. Clear? That average power is defined as the ratio of total work done by the total time taken, or we can say average power is equals to total energy consumed upon total time taken. Clear? Actually, an agent may perform work at different rates at different interval of time. कोई भी एजेंट जो वर्क परफॉर्म करता है वो डिफरेंट रेट्स पे परफॉर्म कर सकता है एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम के डिफरेंट इंटरवल्स पे डिफरेंट रेट्स पे वो वर्क को परफॉर्म कर सकता है. इन सच सिचुएशन एवरेज पावर इज कंसीडर्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोटल टाइम टेकन. ऐसी सिचुएशंस में जो एवरेज पावर है उसको कैसे कंसीडर किया जाता है? by dividing the total energy consumed by the total time taken. Clear? Total energy consumed को total time taken से यदि divide कर दिया जाए तो हमें average power के बारे में पता चल जाता है. Clear? That an agent may perform work at different rates at different interval of time, and therefore in such situations average power is considered by dividing the total energy consumed by the total time taken. अब बात आती है कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर. पावर की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? द यूनिट जूल इज टू स्मॉल टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी कन्वीनियंटली. जो यूनिट है जूल वो काफी स्मॉल है. यदि हम लार्ज क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना चाहें, एनर्जी की लार्ज क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट जूल काफी स्मॉल हो जाती है. देयरफॉर बिगर यूनिट इज यूज्ड. क्लियर? दैट द यूनिट जूल इज टू स्मॉल टू एक्सप्रेस large quantities of energy conveniently, therefore big units is used. The bigger unit is commercial unit of electric energy, known as kilowatt hour or board of trade, that is BOT unit. जो bigger unit होती है वो commercial unit होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, और ये किलोवाट आवर में हम इसे जानते हैं, इसे किलोवाट आवर बोलते हैं, एंड इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड दैट इज BOT के नाम से भी जाना जाता है.
तो अभी आपको याद रहेगा व्हाट इज बीओटी, इट इज द बिगर यूनिट and it is used as a commercial unit of the electrical energy which is also known as kilowatt hour. It is the amount of electrical energy consumed by an appliance of power 1000 watt in 1 hour. ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो अमाउंट होता है जो कोई भी एप्लियंस कंज्यूम कर सकता है इन 1 आवर। 1 आवर में यदि कोई भी एप्लियंस 1000 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का अमाउंट होगा वही क्या होगा, पीओटी होगा। क्लियर? दैट इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, दैट इज 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, दैट इज 1000 जूल सेकेंड इनवर्स इंटू 3600 सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। Is that clear? That 1 kilowatt hour will be is equals to the 3.6 into 10 to the power 6 joules. Now there is a numerical time. The question is there. A man does 100 joule work in 20 seconds. कोई मैन है जो 100 जूल वर्क करता है 20 सेकेंड्स में। What is his power? हमें क्या करना है, उसकी पावर फाइंड आउट करनी है। See W is equals to 100 जूल here, ठीक है। टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 20 सेकेंड हो गया। We know P is equals to होता है W upon T, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर इज इक्वल्स टू हो गया 100 अपॉन 20, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 वॉल्ट। तो क्लियरली हमने यहाँ पे पावर को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ट डज 1.2 जूल ऑफ वर्क इन ईच हार्ट बीट। हार्ट 1.2 जूल वर्क परफॉर्म करता है हर एक हार्ट बीट में। देन हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट डज इट बीट इफ इट्स पावर इज 2 वॉट। कितने टाइम्स वो बीट करेगा यदि उसकी जो पावर है वो 2 वॉट है। क्लियर? वी हैव टू आंसर दैट। सो हियर वर्क डन इन ईच हार्ट बीट इज इक्वल्स टू 1.2 जूल। क्लियर? हर हार्ट बीट में कितना वर्क हो रहा है, 1.2 जूल हो रहा है। टाइम कितना है, 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड्स। क्लियर? पावर दी हुई है हमें 2 वॉट, दैट इज 2 जूल सेकेंड इनवर्स। टोटल वर्क डन कितने बराबर हो गया, P इंटू टी के बराबर। पावर हमें 2 दी हुई है और जो टाइम है वो हमें 60 दिया हुआ है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा 120 जूल। दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन अपॉन वर्क डन इन ईच हार्ट बीट। क्लियर? क्या होगा, यदि हमें नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट निकालने हैं तो टोटल वर्क डन अपॉन वर्क डन इन ईच बीट, यही फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन कितना है, 120। क्लियर? और वर्क डन इन ईच हार्ट बीट 1.2। तो इसको जब सॉल्व आउट करेंगे आंसर आ जाएगा 100 टाइम्स। तो कितना होगा, हार्ट कितने टाइम्स बीट करेगा पर मिनट, 100 टाइम्स पर मिनट हार्ट जो है वो बीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉय डज 400 जूल ऑफ वर्क इन 20 सेकेंड। कोई भी एक बॉय है जो 400 वर्क परफॉर्म करता है 20 सेकेंड में। इन द फर्स्ट टाइम में वो 400 जूल वर्क परफॉर्म कर रहा है 20 सेकेंड में। And during second time the same body does 100 joule work in 2 seconds. दूसरी बार क्या होता है, वही सेम बॉडी 100 जूल वर्क परफॉर्म कर रही है 2 सेकेंड में। हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द बॉय। हमें पावर के जो रेशियो है वो फाइंड आउट करते हैं इन बोथ द केसेस, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। फर्स्ट केस में वर्क डन बाय द बॉडी दैट इज W1 इज इक्वल टू हमें गिवन है 400 जूल, टाइम हमें गिवन है 20 सेकेंड, पावर हमें फाइंड आउट करनी है। सेकेंड केस में W2 इज इक्वल टू 100 जूल गिवन है, T2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स गिवन है, राइट? हाँ, 2 सेकेंड्स गिवन है एंड P2 हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? अभी देखो P इज इक्वल टू होता है W अपॉन T। तो फर्स्ट केस में P1 इज इक्वल टू W1 अपॉन T1 हो जाएगा, दैट इज 400 अपॉन 20, दैट विल बी इज इक्वल टू 20 वॉट। क्लियर? सेकेंड केस में W2 अपॉन T2 हो जाएगा, दैट इज 10 अपॉन 2 हो जाएगा, दैट विल बी इज इक्वल टू 50 वॉट। सो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 50। क्लियर? जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2:5। दोनों केसेस में जो पावर है उसका रेशियो कितना होगा, दैट विल बी इज इक्वल टू 2:5। बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। इन टुडेज क्वेश्चन इज, इफ अ फोर्स F acts on the body and moves it with constant velocity v, then power of the body will be। यदि कोई फोर्स F है जो किसी बॉडी पे लग रही है जिसकी वजह से जो बॉडी है वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो बॉडी है उसकी पावर क्या होगी। क्लियर? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5।
Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, power of a body moving with velocity v by a force F is given by P is equals to force into velocity. तो power is equals to क्या हो जाएगी? F into V. Clear? That the power of body moving with velocity v by a force F is given by P is equals to force into V, that is P is equals to FV. Is that clear to you? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया what power actually is. उसके साथ में हमने स्टडी किया पावर के जो फॉर्मूलेज हैं वो क्या होते हैं, कमर्शियल यूनिट्स क्या होती हैं पावर की, जो पावर है उससे की और जो बीयूटी है वो क्या है, उसकी कमर्शियल यूनिट्स को हम कैसे एक्सप्लेन स्टडी कर सकते हैं, और भी हमने काफी सारी चीजें पार्क के बारे में डिस्कस करी. अलॉन्ग विद दैट हमने कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व आउट किया और उनको सॉल्व आउट करने के इजी मेथड्स भी समझे. आई थिंक दिस वाज एनफ फॉर दिस सेशन. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस more about this chapter. Till then, good luck.